Hello friends, in previous lecture we discussed two basic acids. One is a phosphorus acid, another one is a phosphoric acid. Okay, phosphorus acid and phosphoric acid. So let me draw the structure of phosphoric acid. P double bond O, its structure is tetrahedral. Here is OH. This structure is phosphoric acid. Its molecular formula is PO4. Oxidation state of phosphorus -8 plus 3. Oxidation state of phosphorus is +5. Number of hydrogen present 3. So this one is a tribasic acid. Which type of acid? It is a tribasic acid. Tribasic acid. Clear? See in table number 7.5 in our textbook, so many acids are given. If you prepare this one acid, then you can prepare so many acids. And in last column, preparation method is also given. Okay. So that table you have to prepare, then we have to conclude what is there in oxo acids of phosphorus. H3PO4, so molecular formula, basicity of acid, why tribasic, 3 acidic hydrogens are there. Okay, oxidation state of phosphorus is +5. Then after preparation method is P4O10 when hydrolyzed. P4O10 when hydrolyzed with water, phosphoric acid is obtained. Let us discuss another one acid. If you know this acid, then by specific clue you can write so many acids by removing water molecule from this acid. 1 OH, we will get the acid like this: P double bond O, OH, and one side is oxygen, or you can write like this also, because all structures are tetrahedral. OH and coordinate covalent bond O. Okay. So now prepare molecular formula. That one is HPO3. Find out oxidation state of phosphorus here, -6 plus 1. Oxidation state of phosphorus is +5. Oxo acid hydrogen, the hydrogen attached with oxygen and which is ionizable in water. So this one is a monobasic. This one is monobasic. All these things are written. And the name, write down name here, orthophosphoric acid or phosphoric acid. The name of this is the phosphoric acid. Then by removing one water molecule, you have to write meta. Whenever water is removed from the basic acid, okay, this one is the parent acid, then we have to write meta. So name of this acid is metaphosphoric acid. मेटाफॉस्फोरिक एसिड. अब बात आती है कि ये बनता कैसे, तो उसकी मेथड हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं है. ठीक है. अब टेक दिस एसिड 2 moles. Take this acid 2 mole and heat it. So H of this acid and OH of coming acid 2nd mole, water molecule is removed here. Water molecule is removed here. Let me explain you. See here on this board, 1 phosphoric acid, that is P double bond O, OH. Another 2nd mole is HO, P double bond OOH. Actually it is a tetrahedral, but for your convenience I am writing in a geometrical shape. Remove water molecule by heating.
this water molecule is removed, minus H2O, and both unit combined together, POP linkage is obtained. And now write down this as it is. After removing water molecule, see what happens here. POP, double bond O, OH, OH, so two phosphoric acid combined together, so it is called diphosphoric acid. Diphosphoric acid, or by heating it is prepared, so it is called pyrophosphoric acid. Pyro means heat. Pyrophosphoric acid. Write down its molecular formula. Molecular formula is 1, 2, 3, 4, H4, P2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 oxygen. Find out the oxidation state of phosphorus. Minus 14 plus 4 minus 10 divided by 2. So oxidation state is plus 5. Oxidation state is plus 5. Now another acid you can prepare. Add in this acid 1 oxygen. And remember, I am going to give you one clue, that by removing water, this is a dimerization, so written diphosphoric acid. Here you don't have to use meta, but from this acid water molecule is removed, OH from here and H from here, and that is written meta. Whenever oxygen added, then we have to write peroxo, because that oxygen is added and that acid becomes peroxide. So what happens to this acid? See here, phosphorus, double bond oxygen, OH, OOH, and downside is OH. So this one is a peroxo. These two oxygens are peroxide oxygen. Oxidation state is -1. So here the name is peroxo mono. One peroxide, peroxo mono phosphoric acid. Peroxo mono phosphoric acid. Pay attention, my friend. The complete table is very difficult to prepare. By remembering only this acid, I am giving you two clues how to prepare other acid. From this phosphoric acid, by removing water molecule, you can prepare this acid. By dimerization, 2 mole and heating and removing water molecule, you can prepare diphosphoric acid. In this acid, by adding 1 oxygen, you can prepare peroxo monophosphoric acid. Now once the structure is clear, then another things are very clear. Now write down formula, that is 1, 2, 3, 3 hydrogen. See, here written monobasic, here written tribasic, like that. Here it is written 1, remaining to write 1, 2, 3, 4. Then this one is the tetrabasic. This one is the tetrabasic. Similar way, write down. If I forgot, then you have to write how many hydrogen combined with oxygen, that is its basicity. Okay, peroxo monophosphoric acid, H3P 1, 2, 3, 4, 5, O5. Out of this 5 oxygen, 2 are the peroxide. So find out the oxidation state of this phosphorus. See, -2, -2, -2, -6, -1, -1, -8, 8 plus 3, plus 5. So oxidation state is a plus 5. -6 and -2, -8 plus 3 means -5, that side it becomes plus 5. Okay. Now another thing is, by adding oxygen we can, if we take 3 moles of this acid, refer textbook, here preparation method is also given. Preparation method is given, then write down. If not given, then don't worry. This is a very easy method I have given you. If you take 3 moles
then what happens? See here on this board, take another phosphoric acid here, plus P double bond O, OH and OH. What happens? This OH and H removed, 2 water molecule removed, and we will get like this POP, OP. Okay, so it is called triphosphoric acid. What is that called? Triphosphoric. It is not in our book, but just I am explaining you. POP, then OH, minus 2H2O, 3 moles of phosphoric acid, double bond O, see basicity 1, 2, 3, 4, 5, pentabasic acid. Pentabasic acid. Okay, write down formula 1, 2, 3, 4 and 5. 5 hydrogen, 1, 2, 3, 3 phosphorus. Okay, 3 phosphorus, and now oxygen. No peroxide is there. Okay, here is double bond oxygen. Oxygen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. 3 plus, sorry, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Oxygen 10. Find out oxidation state. Write down here, it is a pentabasic. And imagine, if this is the diphosphoric acid, then this one is triphosphoric acid, because 3 molecules combine together. If this one is a diphosphoric acid, my friend, then this one is the triphosphoric acid. Like that 4 combined, then it is called tetraphosphoric acid. If so many combined, then it is called polyphosphoric acid. Okay. So see here, minus 20, plus 5, minus 15, that side plus 15 divided by 2. So once again oxidation state is plus 5, and write down name triphosphoric acid. Triphosphoric acid. अब यहाँ पे मुझे एक ऑक्सीजन ऐड करना है. ऐड 1 ऑक्सीजन. चलिए क्या होगा, मैंने यहाँ आपको समझाया कि whenever the oxygen is added then it becomes peroxide. तो ये जो स्ट्रक्चर है वो भी पेरोक्साइड ही होगा. यहाँ पे ऑक्सीजन आपको ऐड करना है, POOP, ठीक है. OH, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे OH. अब ध्यान से देखिए, मैंने एक ही एसिड पकड़ा था. कौन सा? फॉस्फोरिक एसिड. वहां से मैं कितने एसिड आपको सिखा रहा हूं. एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल लो, ऑक्सीजन ऐड कर दो. आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो टेबल दिया हुआ है, ठीक है. वो टेबल में आप सुबह से लेकर शाम तक रट्टा मारोगे तो भी समझ में नहीं आएगा. इसमें एक ऑक्सीजन ऐड कर दो तब पेरोक्सो डालो, वाटर निकालो तब मेटा डालो, जब उसका डाइमराइजेशन करो तो डाई डालो, ट्राइमराइजेशन करो तो यहाँ पे ट्राई लिखो, ट्राइफॉस्फोरिक एसिड. पॉलीमराइजेशन करो तो लिखो पॉलीफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है. तो यहाँ पे मैंने एक ऑक्सीजन डाल दिया है, तो ये होगा, ये डाइफॉस्फोरिक एसिड तो है ही. अब उसको हम बोलेंगे पेरोक्सो डाइफॉस्फोरिक एसिड. डाइफॉस्फोरिक एसिड तो है, तो यहाँ पे ये जो है वो पेरोक्साइड है. जो अंडरलाइन ऑक्सीजन आप देख रहे हैं वो पेरोक्साइड हो जाते हैं. तो मैं नाम लिखूंगा पेरोक्सो डाइफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है. पेरोक्सो डाई. अब मोलेकुलर फॉर्मूला बना दो, 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन, 2 फॉस्फोरस. अब ऑक्सीजन को काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8. ऑक्सीजन जो है 8. आउट ऑफ 8 ऑक्सीजन 2 आर पेरोक्साइड. तो आपको कैसे गिनना है? -2 -2 -2. ये हुआ -6, -2 -2 -2. अदर -6 दोनों को मिला दो, -12, और ये -1 -1, तो टोटल हुआ -14. उसमें से ये 4 निकाल दो, +4, तो हुआ -10. -10 वो साइड हो जाएगा तो +10 डिवाइडेड बाई 2. यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +5.
ठीक है, और ये 4 हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक है, तो ये है टेट्राबेसिक। ठीक से देख लो, ये है टेट्राबेसिक। ठीक है, टेट्राबेसिक। इसकी भी प्रिपरेशन मेथड टेक्स्ट बुक में दी नहीं है, जहां पे दी है वहां पे मैं आपको गाइड कर रहा हूं। ये पूरा आप एक बार चार्ट के फॉर्म में लिख लो। अभी इसमें से मुझे 1-2 एसिड और इसमें से भी मुझे डाइफॉस्फोरिक एसिड में से भी एक एसिड बनाना है। हेलो फ्रेंड्स, हम जो फॉस्फोरिक एसिड्स में से डिफरेंट एसिड बना रहे हैं वो मैंने पहले डाइमराइजेशन किया, अब मैं कर रहा हूं पॉलीमराइजेशन। अब आप एन टाइम फॉस्फोरिक एसिड ले लो। ठीक है, आप अगर एक पेपर में एडजस्टमेंट कर सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अदरवाइज नाउ रिमेनिंग रिएक्शन आई एम राइटिंग ऑन सेपरेट बोर्ड। ये मैं एन टाइम फॉस्फोरिक एसिड ले रहा हूं। ठीक है, एन टाइम। अब 2 टाइम लूंगा तो 1 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव्ड, 3 टाइम 2 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव्ड, 4 टाइम, 5 टाइम, every time 1 water molecule less, but I am taking n time, so water molecule removed n minus 1, n minus 1 H2O। ठीक है, इसको हीटिंग करेंगे तो अब POP 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 लिंक ऐसे मिलती ही जाएगी। देखिए डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH, ये चलता ही जाएगा क्योंकि ये पॉलीमर है। जब तक हम स्टॉप नहीं करेंगे ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये OH। अब उसको बोलेंगे, उसको हमने बोला था डाइफॉस्फोरिक एसिड, 3 बार लिया था तो ट्राइफॉस्फोरिक एसिड, तो इसको बोलेंगे पॉलीफॉस्फोरिक एसिड। और अब ध्यान से देखिए कि ये रिपीट, ये यूनिट जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, ये वाला। ये यूनिट बार बार रिपीट हो रहा है इसमें। पॉलीमर में कोई एक यूनिट, आप 10th में पढ़े हो पॉलिस्टर, ठीक है, नाइलॉन, ऐसे। तो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला मैं लिख सकता हूं HPO3 एन टाइम। और ऐसे मुझे लंबा पॉलीमर H H H H मिलेगा ही। इससे पहले हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -6 + 1, ये हुआ +5। और बेसिसिटी का तो कोई सवाल ही नहीं होता, पॉलीबेसिक, सो मेनी। जब तक पॉलीमर चलता रहेगा, एन टाइम फॉस्फोरिक एसिड कंबाइन टुगेदर, तो इसकी प्रिपरेशन है फॉस्फोरस एसिड और Br2, H3PO3 + Br2 को लेके सील्ड ट्यूब में ले लो, सील्ड ट्यूब, और हीटिंग करो तो आपको मिलेगा। ये तो मैंने सीधी मेथड बताई। अगर आपको डायरेक्ट पॉलीफॉस्फोरिक एसिड लेबोरेटरी में बनाना है तो ये प्रिपरेशन मेथड है, वहां फॉस्फोरिक एसिड की, फॉस्फोरस एसिड की जरूरत पड़ती है। ये प्रिपरेशन मेथड है, ठीक है। ये तो मैं बनाना सिखा रहा हूं कि इसमें से आप इतना चेंज करोगे तो ये आपके सामने आ जाएगा। अब एक एसिड इस कैटेगरी में बाकी है लास्ट, और वो है डाइफॉस्फोरिक एसिड। ले लो POP डबल बॉन्ड O, ये है डाइफॉस्फोरिक एसिड, और पायरोफॉस्फोरिक एसिड। उसमें से एक ऑक्सीजन निकाल दो। ध्यान रखना, जब मैं वाटर निकालता हूं तो मैं यूज करता हूं मेटा, ठीक है। जब मैं ऑक्सीजन निकालूंगा इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, व्हेन आई रिमूव ऑक्सीजन देन आई हैव टू यूज वर्ड हाइपो। अब ये एसिड जो है इसका बाप कौन था? फॉस्फोरिक एसिड, तो इसका नाम दिया हमने डाइफॉस्फोरिक एसिड। अब उसमें से मैं ऑक्सीजन निकाल रहा हूं और ये ऑक्सीजन निकालूंगा, देखिए बाकी किसी को हिलाना नहीं, ये जो लिंकेज वाला ऑक्सीजन है उसको निकाल दीजिए, और उसकी जगह पे जो ये नाम है उस पे मैं हाइपो लगाऊंगा, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो ये देखिए HO PP OH वो निकाल दिया मैंने।
डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, नाम मैं दूंगा इसका हाइपो फोस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। आप इसका फॉर्मूला बनाओ, मोलेकुलर फॉर्मूला जो है इसका H4, 2 फॉस्फोरस P2, 1 2 3 4 5 6 O6। ध्यान में रखेगा यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ चेंज होने वाला, अभी तक तो आपने +5 ही ढूंढा। ये डाइफॉस्फोरिक एसिड है जो आपने पहले लिख लिया है। -12 इसका होगा +4, -12 +4 कितना होगा -8, उस साइड जाएगा तो +8, +8 -12 ये +4, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2, -12 +4 -8, दैट साइड +8 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +4। अब बेसिसिटी की बात करते हैं तो 1 2 3 4 हाइड्रोजन है, तो ये है टेट्रा बेसिक। और अगर मैं प्रिपरेशन मेथड की इसकी बात करूं तो आप रेड फॉस्फोरस में अल्कली मिला दो, लैब में सीधा एसिड बनता है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। तो जो एसिड रिलेटेड टू फॉस्फोरिक एसिड थे वो सब यहाँ पे खत्म हो रहे हैं, और एक एसिड मुझे लेना है, वो है इसका ट्राइमराइजेशन। ये बेसिक यूनिट, ये आप ले लो HPO3 3 टाइम्स, HPO3, इसका ट्राइमराइजेशन होगा 3 बार, तो एसिड मुझे ऐसा मिलेगा PO, इस यूनिट का, ये पॉलीमर का जो ये यूनिट है उसका मैं ट्राइमराइजेशन कर रहा हूं। तो देखिए ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे OH, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे OH, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे OH। आप अपने आप लिखिए इसका मोलेकुलर फॉर्मूला क्या होगा। तो ये 3 बार है, H3P3O9, H3P3O9 मोलेकुलर फॉर्मूला, ठीक है। बेसिसिटी आप देखें तो 1 2 और 3 ट्राई बेसिक, ये है ट्राई बेसिक। और अगर यहाँ पे फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है तो यहाँ गिनने की जरूरत ही नहीं है, ऑक्सीडेशन स्टेट आपका +5 ही आएगा। तो इतने एसिड जो है मैंने दिखाए बोर्ड के ऊपर, दीज एसिड्स आर रिलेटेड टू द एसिड्स इफ यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। अब बहुत ही कम स्ट्रक्चर है, 2 ही स्ट्रक्चर है, द एसिड्स रिलेटेड टू फॉस्फोरस एसिड, ठीक है। तो पहले ये लिख लीजिए और बाद में हम थोड़ा ही है, 3 ही स्ट्रक्चर है, आप टेंशन मत लीजिए, इतना आप प्रिपेयर करिए, बाद में हम फॉस्फोरस एसिड के ऊपर जाते हैं। लेट अस डिस्कस द oxo acids which we can frame from phosphorus acid। तो ये देखिए फॉस्फोरस एसिड का फॉर्मूला P डबल बॉन्ड O, ये है H OH एंड OH। इसमें से अगर मैं ऑक्सीजन निकाल दूं -O, याद करिए मैंने क्या बोला, जब ऑक्सीजन निकालते हैं तो ये इसका पूरा आप डेटा नोट कर लीजिए। H3 मोलेकुलर फॉर्मूला आएगा इसका H3PO3 -6 +3, इसका कितना होगा -6, ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +3। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट +3, ठीक है। नाम क्या बनेगा इसका, फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड। इसको फॉस्फोनिक एसिड भी बोला जाता है। कभी कभी आप कंफ्यूज ना हो तो मैं दूसरा भी नाम आपको दे देता हूँ, फॉस्फोनिक एसिड। एक ऑक्सीजन निकाल दो आप तो क्या होगा, P डबल बॉन्ड O, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड OH, ठीक है। अब ये हुआ हाइपो, ऑक्सीजन निकालते हो तो हम क्या बोलते हैं, हाइपोफॉस्फोरस एसिड,
हाइपोफॉस्फोरस एसिड। इसका भी ये जो है आई की जगह पे ओ लगा दो, इसको बोलेंगे फोस्फेनिक एसिड। ओ की जगह पे आई लगा दो, फोस्फेनिक एसिड, फोस्फेनिक एसिड। मोलिकुलर फॉर्मूला बनाओ, इट विल बी H3PO2 -4 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, +1 एक ही हाइड्रोजन है एसिडिक, तो ये होगा मोनोबेसिक, ये होगा मोनोबेसिक। अब इसकी प्रिपरेशन मेथड है, वहां रेड पी था जहां पे ऑक्सीजन निकाला, तो यहाँ पे व्हाइट P4 प्लस अल्कली, लेबोरेटरी में बनाना है तो ऐड कर दो। अब इसका 2 मोल ले लो, 2 मोल्स, तो -H2O, वाटर मोलेक्यूल एक रिमूव होगा, और हमें उसमें जो 2 मोल लेते थे तो हमें मिलता था डाइफॉस्फोरिक एसिड, यहाँ पे हमें मिलेगा डाइफॉस्फोरस एसिड। ये OH और सामने वाले का H -H2 इज रिमूव्ड, सो दिस विल बी P डबल बॉन्ड O H O P डबल बॉन्ड O, ठीक है, H और यहाँ पे OH और OH, ठीक है। फॉस्फो डाइफॉस्फो, नाम लिखो इसका, डाइफॉस्फोरस एसिड। मोलिकुलर फॉर्मूला बनाओ, व्हाट इज द मोलिकुलर फॉर्मूला, एंड दैट वन इज H4P2 1 2 3 4 5 ना, 1 2 3 4 5 O5, ये -10 + 4, -10 + 4 -6, एंड दिस +6 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +3। कितने हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के साथ, तो ये होगा डाइबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड, ठीक है, इसको लिख लो। Okay my friends, let us discuss about the conclusion of all these acids। यहाँ पे मैंने एक साइक्लो बनाया था, साइक्लो उसका नाम शायद मैंने नहीं दिया है, ये वाला नहीं है, पीछे वाला बोर्ड है शायद, हाँ ये देखिए, ये मैंने मोलिकुलर फॉर्मूला लिखा है ट्राइबेसिक, इसका नाम आप लिख लेना, ये है साइक्लो ट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड, साइक्लो लिख लो, साइक्लो ट्राइमेटा फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, लिख लिया। चलिए अब हम कंक्लूजन की ओर बढ़ते हैं। आपने सब ऑक्सो एसिड्स देख लिए, उसके बाद चलिए कंक्लूजन के ऊपर आते हैं। कंक्लूजन्स नंबर 1, ऑल एसिड्स कंटेन at least one P डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड POH बॉन्ड। कोई भी एसिड ले लो, उसमें एक P डबल बॉन्ड O है, एक POH बॉन्ड मिनिमम है, ठीक है। कि if oxidation state of phosphorus is less than +5, then either one PP bond, आप बाद में ये देख लेना, PP bond और one PH bond is present। ये सभी एसिड के लिए एक P डबल बॉन्ड O और एक POH है। जिस एसिड में ऑक्सीडेशन स्टेट लेस देन +5 है, इसमें आप देख लेना, या तो एक PH बॉन्ड है या तो एक PP बॉन्ड है। द ऑक्साइड in which oxidation state is less than +5, they undergo disproportionation reaction, disproportionation
रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन जो है वो रेडॉक्स रिएक्शन है। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। एक्स फॉर एग्जांपल आप ले लो H3PO3, इट अंडर ऑक्सीडाइज टू H3PO4 प्लस PH3। बैलेंसिंग का टाइम नहीं है, बैलेंसिंग आप कर लेना, फिर भी मैं आपको बता दूं ये बैलेंसिंग स्टोक्योमेट्री बहुत ही ईजी, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ फॉस्फरस -6 +3, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है -3, +3 to +5 ऑक्सीडेशन, +3 to -3 रिडक्शन, ठीक है। एक ही कंपाउंड खुद का ऑक्सीडेशन भी करता है, एक ही कंपाउंड खुद का रिडक्शन भी करता है, उसको बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। नंबर 4, ऑल हाइड्रोजन विच आर लाइक POH, जितना एसिड है इसमें यही हाइड्रोजन POH आर एसिडिक। The hydrogen which is attached with oxygen are acidic. Number 5, if hydrogen directly attached to the phosphorus are not acidic, are not acidic. So number 6, the acids having pH bond, that hydrogen acts, और ये भी लिख सकते हैं used for reduction। तो ऐसे जो हाइड्रोजन है जो सीधा डायरेक्टली फॉस्फोरस के साथ कनेक्टेड है, तो दे आर यूज्ड फॉर रिडक्शन। सो दैट एसिड्स आर रिड्यूसिंग एजेंट। एक रिएक्शन लेते हैं, पहले ये आप 6 पॉइंट लिख लीजिए। सो जो मैंने बोला दैट हाइड्रोजन यूजफुल एज अ रिडक्शन, पीएच जो एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, जो रिडक्शन में यूज आता है, तो मैं उसका एग्जांपल सिल्वर नाइट्रेट। अब एक ऐसा एसिड ले लो कि जिसमें पीएच बॉन्ड आता है, तो मैं यहाँ पे एसिड ले रहा हूँ H3PO2, आप नाम लिख लेना। बैलेंस करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, तो वाटर मॉलिक्यूल तो हमें ऐड ही करना है। तो दैट सिल्वर नाइट्रेट आपको बैलेंस नहीं करना है। दिस सिल्वर नाइट्रेट is converted to silver metal. Here oxidation state is +1, here oxidation state is 0. तो +1 to 0 decrease by 1, क्या हुआ? सिल्वर का रिडक्शन हुआ। बाकी आपको जो यहाँ पे एसिड मिलेंगे HNO3, और एक बाई प्रोडक्ट मिल रही है वो है H3PO4। ठीक है, बैलेंस नहीं करना है, सिर्फ मुझे समझाना है आपको, सिर्फ मुझे समझाना है कि जो एसिड जिसके अंदर पीएच बॉन्ड है, द एसिड जिसके अंदर पीएच बॉन्ड है, वो सिल्वर और उसके सिमिलर मेटल का रिडक्शन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ये लेक्चर खत्म करेंगे। यहाँ पे माय फ्रेंड्स ग्रुप नंबर 15 पूरा खत्म हो रहा है। ठीक है, तो आप इनटेक्स एक्सरसाइज जो भी क्वेश्चन है मैंने जो समझाया उसमें सब आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर नहीं समझ में आता है तो बाद में हम कांटेक्ट करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।